Yes, happy good morning to all of you, especially for those who are attached with WhatsApp group of PhD coursework 2019 of the department. First of all, my message is stay home, stay safe during the lockdown period. Dear students of PhD coursework 2019-20, first of all, I welcome all of you in the lecture series of PhD coursework of paper 2, that is advanced courses for research in economics. Basically, this paper has 2 units. Unit 1 is related with development part of India and झारखंड. यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि विकास के बारे में जो भी चर्चा होगा वह भारत के संदर्भ में, झारखंड के संदर्भ में होगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स लोग जो डेवलपमेंट पर अपना रिसर्च करते हैं उसका आधार रीजनल, जिसे आप कहते हैं क्षेत्रीय, लेकर ही चलते हैं. इस पर बहुत ध्यान देना है. दिस यूनिट हैज 6 पार्ट्स एंड ऑल पार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट टू नो डेवलपमेंट. जो यूनिट 1 है बहुत भागों में बटा हुआ है और उसका मुख्य 6 भाग है, जिसे आपको बहुत ध्यान से अध्ययन करना है, क्योंकि रिसर्च का ये भाग है. यूनिट 2 is related with sectoral research, which is related with various sectors of the economy. जैसा कि हमने क्लास में भी बतलाया है कि जो भी आपको रिसर्च का काम करना है वह अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा, और बहुत सारे क्षेत्र हैं. कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, उसके विकास पर ध्यान देना होगा. Your research work will be based on all 2 units. So try to search out topics of research project. ये जो 2 यूनिट है, 2 इकाई है, उसी से आप रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक खोज सकते हैं. सो रिसर्च प्रोजेक्ट यू कैन टेक फ्रॉम these 2 units, unit 1 and unit 2. There is wide scope of research in these 2 units. Here, my lecture series will be delivered on the topic economic development of unit 1. Economic development is very vast, large and important. It covers all 6 parts of unit 1. क्योंकि विकास की जब भी हम लोग चर्चा करेंगे तो जितने भी फैक्ट्स एंड फैक्टर्स है वह विकास से जुड़ा हुआ है. There will be
separate lectures on all of six parts by expert professors. My lecture will be on economic development. In this part of economic development, I have already delivered my lectures in classroom. यहाँ पर आपको याद कराना चाहेंगे कि हमने जो भी क्लास लिया है उसमें डेवलपमेंट का चर्चा किया है और कुछ पार्ट का ही चर्चा किया है. I have taught you basic concept of economic development as you know it, difference between development, growth and progress, as well as I have discussed factors influencing economic development. Under the factors of development, I have already touched and discussed economic factors, under which 2 points were discussed. And now, under economic factors, there is third point, that is very important factors of development, and point is capital formation. I have already discussed point A, point B, and capital formation will be C. Try to follow lecture and note down some important points for your memory and research work. The lecture will be delivered slowly for your convenient understanding. Today, I am going to deliver lecture on first part based on economic factors and non-economic factors. आपको याद होगा कि विकास का जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं वह आर्थिक तत्व हैं और गैर आर्थिक तत्व हैं. Now the lecture starts with another key factors, that is main factors, under economic factors, आर्थिक तत्व of development. Factor is capital formation. I have to start from introduction. So come to introduction, which I have discussed in the classroom. There are 2 important factors which influences economic growth and economic development of any country of the world. Under economic factors, I have already discussed in the class 2 important factors, that is natural resources, जो आपको बतलाए थे क्लास में, प्राकृतिक संसाधन. बहुत सारे संसाधन का मैंने क्लास में चर्चा किया है और जो भी संसाधन का चर्चा किया है उससे आप अपना रिसर्च वर्क निकाल सकते हैं. उसको यही है कि क्षेत्र के आधार पर आपको बांटना होगा, क्योंकि आर्थिक विकास के जो क्षेत्र हैं उसी से आपका रिसर्च वर्क जुड़ा हुआ होगा. सो नंबर ए नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि मैंने बतलाया अभी. नंबर बी ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लेबर. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर.
ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें भी बहुत सारे पहलुओं का उल्लेख किया गया है जिसमें आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं। एंड नाउ द थर्ड फैक्टर, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में विस्तार से जानना है और बहुत सारे टॉपिक इस पाठ से आप निकाल सकते हैं। सो नाउ कम कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी संचय जिसे आप कहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इज प्री रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। फुल रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन is urgent, otherwise aims of development cannot be achieved। यहाँ पर आपको देखना है कि कैपिटल फॉर्मेशन में कैपिटल गुड्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सो डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन मोर क्वांटिटी of capital goods। There is high rate of capital formation in developed countries, जो आप जानते भी हैं, and there is low rate of capital formation in less developed countries। तो यहाँ पर पूंजी के आधार पर आप बहुत सारे क्षेत्र में विकास को दर्शा सकते हैं। झारखंड इकोनॉमी के बारे में ही भी अगर आपको रिसर्च करना है तो कैपिटल फॉर्मेशन का प्रयोग करके बतला सकते हैं कि झारखंड में कैपिटल फॉर्मेशन की वर्तमान में स्थिति क्या है, या तो हाई रेट है या लो रेट है, जिसे आप रिसर्च के द्वारा साबित कर सकते हैं। Capital formation is accepted as key, जिसे आप कहते हैं कुंजी, important of development of any country। So it is very important factor। इस कैपिटल का प्रयोग करेंगे तो इसका रिजल्ट भी अलग अलग मिलेगा, जहाँ पर रिसर्च वर्क किया जा सकता है। Results of capital formation are the following। एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए तो आपको क्लियर होगा कि कहाँ से आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं कैपिटल को आधार बनाकर। सो सी हियर कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या करेगा। नंबर ए, इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्पादन को बढ़ाने में पूंजी का महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर बी, बाय इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स देयर इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर देखिए कि पूंजी का प्रभाव रोजगार पर पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र का अगर आप रोजगार का स्तर जानना चाहेंगे तो कैपिटल के प्रयोग द्वारा आप दर्शा सकते हैं। नंबर सी, बाय टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन विल इंक्रीज। यहाँ पर यह आप बतला सकते हैं कि अगर कैपिटल है तो टेक्नोलॉजी भी होगा, और टेक्नोलॉजी होगा तो तुरंत आप कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन जो है वह इंक्रीज करेगा। नंबर डी, वर्किंग पॉपुलेशन गेट्स न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट एटसेट्रा। नंबर सी, सोशल फैसिलिटीज आर पॉसिबल लाइक इलेक्ट्रिक, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा।
यहाँ पर भी देखिए कि पॉइंट ई जो बतला रहा है कि सामाजिक क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिसे आप कैपिटल के आधार पर दर्शा सकते हैं कि किस क्षेत्र में इन पहलुओं का क्या स्थिति है। नंबर एफ, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। यहाँ पर यह भी है कि पूंजी का प्रयोग करते हैं और हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है तो उसका प्रयोग हो सकता है, अच्छे ढंग से हो सकता है, उसे आप रिसर्च में भी दर्शा सकते हैं। नाउ नंबर जी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जो कि अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नंबर एच, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंड नंबर आई, एक्सटेंशन ऑफ मार्केट एक्सेट्रा। तो इस तरह कैपिटल फॉर्मेशन का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिसाइड दैट, it can be pointed out here that capital formation is a responsible factor which promotes technology and innovation. पूंजी की भूमिका देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, उसमें प्रगति हो सकता है, क्योंकि पूंजी टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, पूंजी इनोवेशन के लिए चाहिए। एंड सो वी कैन से टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इज प्रेजेंटली very important for development of underdeveloped countries. Now another factor, एक दूसरा ही पहलू है जिसे आप कहते हैं vicious circle of poverty, गरीबी का दुष्चक्र। प्रायः सभी अर्धविकसित देश, विकासशील देश, पिछड़ा हुआ देश विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी के ग्रिप में है, तो उससे मुक्ति पाना है। विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी को अगर ब्रेक करना है तो पूंजी की आवश्यकता है। सो वी कैन से दैट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर अंडर द विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी, सो देयर इज नीड ऑफ capital formation to break vicious circle of poverty. And vicious circle is explained by Professor R. Nurks in his famous book The Problems of Capital Formation, जहाँ पर vicious circle का विस्तार से चर्चा है। विशेष सर्किल को अगर आप फिगर में देखना चाहते हैं, जो कि यहाँ पॉइंटेड है, तो लो रियल इनकम, एंड ड्यू टू दैट वी आर गेटिंग लो सेविंग्स, लो बाइंग पावर, लो डिमांड, लो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल डिफिशिएंसी, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, and therefore low productivity, and that is related with low real income. This is a circle, right to left and left to right, you can just see, और इसी को ब्रेक करना है। और ये ब्रेक पूंजी संचय के द्वारा ही संभव है, जैसा कि नर्क्स ने स्पष्ट किया है। एंड नाउ capital formation, technological progress, and entrepreneur all are related to each other.
And here, role of an entrepreneur can be examined. और इस तरह देखिए कि पूंजी का प्रभाव किस तरह से बढ़ते जा रहा है। टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक करना है, और जहां आप पूंजी का प्रयोग करना शुरू करते हैं तो इंटरप्रेन्योर का रोल, इंटरप्रेन्योर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होते चला जाता है। सो वी कैन पॉइंट आउट हियर कि किस तरह से एक इंटरप्रेन्योर यहाँ काम करेगा अगर पूंजी है। फॉर डेवलपमेंट एन इंटरप्रेन्योर डज वर्क फॉर स्ट्रक्चरल चेंज। In this regard, scientific progress, technological knowledge, and new inventions are very important. All these are responsible for qualitative change in the economy. और यहीं पर स्ट्रक्चरल चेंज के लिए एक इंटरप्रेन्योर पूर्ण रूप से काम करता है, जहाँ पर आपको रिजल्ट भी है, साइंटिफिक प्रोग्रेस है, टेक्निकल नॉलेज है, न्यू इन्वेंशंस है। एंड सो यू कैन से दैट एन इंटरप्रेन्योर हियर प्लेज ए रोल ऑफ डायरेक्टर एज पॉइंटेड आउट by famous economist शुम्पीटर। शुम्पीटर ने इनोवेशन का चर्चा किया है, जहाँ पर एक इंटरप्रेन्योर की भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि एन इंटरप्रेन्योर इज नॉट ऑनर ऑफ कैपिटल बट ही इज directing the capital in the various fields so that development can occur in the economy. In underdeveloped countries, there are many projects of development which need foreign capital, foreign aid, grant in aid, etc. यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना है कि डोमेस्टिक कैपिटल तो पहला है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो बहुत प्रोजेक्ट हैं उसके लिए, और बाद में अगर हमारा डोमेस्टिक कैपिटल कम पड़ जाता है तभी जाकर फॉरेन कैपिटल, फॉरेन एड, ग्रांट इन एड का हम मदद लेते हैं। लेकिन अर्ध विकसित देश में हम लोग पाते हैं कि हमारा लेवल ऑफ इनकम बहुत कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, तो इसी के फलस्वरूप हम पूंजी का निर्माण अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम, डोमेस्टिक सेविंग इज लो, and if domestic saving will be low, then certainly there will be low rate of capital formation, और उसी के लिए आवश्यकता है विदेशी पूंजी का। So there is need of import of foreign capital. So I have discussed 3 economic factors which are very important for the development of any country, any region, and you can examine the role of capital formation in this regard. Besides the economic factors, there is non-economic factor, गैर आर्थिक तत्व जिसे आप कहते हैं। Now, the second factor of economic development is
non-economic factor. Non-economic factors are operating in underdeveloped countries. In this regard, following should be counted. इस संदर्भ में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आप विस्तार कर सकते हैं. So, the points of non-economic factor is number A. ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें जिसे विस्तार आपको खुद करना है. So number A is social, religious and political factors. This is non-economic factor. In this regard, यहाँ से स्टार्ट होता है पॉइंट्स, देखिएगा. ह्यूमन वैल्यू, social trends, political conditions, historical events, traditionalism, caste system, joint family, laws of heredity or succession, interest in land and property, oppose new methods, extreme burden on social expenditure, instability in politics, lack of peace and security. जितने भी ये पॉइंट्स सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल्स के अंतर्गत है, सभी पॉइंट्स को एग्जामिन करना होगा. और यहाँ से आप बहुत सारे रिसर्च पार्ट निकाल सकते हैं. कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा. सो जितने भी पॉइंट्स है उसे आप कह सकते हैं कि दीज ऑल आर अंडर दिस कैटेगरी ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर. So this was the discussion of point A. We'll now see that another point B that is related with international factor. Beside above, which I have discussed in point A, there is international factor, which can be also counted here. Under this category, there is need of favorable international situation. अगर अंतरराष्ट्रीय स्थिति फेवरेबल नहीं होगा तो विकास की गति को जानना संभव नहीं है. And after that, international political peace and security, जो कि महत्वपूर्ण है विकास के लिए. गुड रिलेशनशिप विथ नेबर कंट्रीज, पड़ोसी देशों से अच्छा संबंध रखना होगा. पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल and foreign trade. So, there are factors which I have discussed related with economic and non-economic factors. अब आपको जो फैक्टर्स का हमने चर्चा किया उसका मेजरमेंट भी होगा, माप.
क्योंकि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को माप करना बहुत ही आवश्यक है। माप करने में कठिनाइयाँ बहुत है। अगर कोई भी रिसर्च स्कॉलर अच्छे ढंग से इकोनॉमिक डेवलपमेंट एवं ग्रोथ का मेजरमेंट करना चाहे तो बहुत ही विस्तार से अध्ययन की ज़रूरत है, और जहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से रिसर्च प्रोजेक्ट बन सकता है। तो ध्यान दीजिए, हाउ टू मेजर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ of any country depends on various parts of analysis, because measurement varies among the countries, among the regions. Some important facts can be taken here to measure economic development. In this regard, there are certain parts which you can use and measure economic development and growth. So come to number 1, which is very important for any country, any region. किसी भी देश के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो पॉइंट है इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर को मापना है, और इसे मापने में बहुत कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि पूरे विश्व के देशों में आर्थिक विकास अलग अलग स्तर में है, सामाजिक कल्याण का स्तर भी अलग अलग है। लेकिन अगर आर्थिक और सामाजिक कल्याण को मापना है तो उसके कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिसे आपको जानना है। So, in this regard, the best measurement is national income or per capita income. It is not necessary that with increase in national income or per capita income, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इंक्रीज। ये जरूरी नहीं है कि जीवन का जो स्तर है वह राष्ट्रीय आय बढ़ जाने से या पर कैपिटा इनकम बढ़ जाने से इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र में अगर मापना चाहिएगा तो उसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जुड़ा हुआ है। सो इन फैक्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कंजम्पशन, एंड लेवल ऑफ कंजम्पशन इज डिपेंडिंग इन पर कैपिटा इनकम, एंड पर कैपिटा इनकम इज डिपेंडिंग ऑन नेशनल इनकम। सो कोरिलेटेड राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उपभोग का स्तर अगर सभी सही ढंग से है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मेजरमेंट हो सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही ये स्पष्ट करता है कि आर्थिक कल्याण है, सोशल कल्याण है या नहीं। क्योंकि विकास को मापने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आर्थिक कल्याण, सामाजिक कल्याण
जिस किसी भी देश में है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी वहाँ है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उच्च है और निम्न है तो आर्थिक और सामाजिक कल्याण भी उच्च और नीच होगा। हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, हाई लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट। विकास को मापने का ये बहुत ही सक्षम तरीका है। इसी के द्वारा आप किसी भी देश या क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण जान सकते हैं। एंड नाउ नंबर सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। I have pointed out in the class that in the economy there are various sectors. अर्थव्यवस्था में बहुत सारे क्षेत्र हैं और सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी क्षेत्रों का विकास एक साथ होना चाहिए या एक साथ नहीं हो पाता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि दो अर्थशास्त्रियों का यहाँ पर विचार है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कि नर्क्स ने कहा है कि सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास होना चाहिए। वहीं एक अर्थशास्त्री हैं हर्समैन, जो कहते हैं कि अर्धविकसित देशों में सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास नहीं हो सकता है। So Marx has pointed out balanced growth, संतुलित विकास, and Hirschman has pointed out unbalanced growth, असंतुलित विकास। वो एक अलग ही पहलू है जिसके आधार पर किसी देश के विकास को मापते हैं। In point second, there is structure of economy. It depends on प्राइमरी सेक्टर, जो आप जानते हैं, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ऑल सेक्टर्स आर इंडेक्सेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यही तीन क्षेत्र है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इकोनॉमी का भाग है, और इन क्षेत्रों के विकास के आधार पर ही किसी देश के विकास का मेजरमेंट होता है। इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज मोस्टली कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम इज मेड बाय प्राइमरी सेक्टर बिकॉज working population is more in this sector. And now next to that, social and basic needs, which is very important part. Social and basic needs are indexes of development. You can say here GNP or per capita income, gross national product or per capita income, PCI, is not only the measurement of development, but social and basic needs are also chief measurement presently. आज वर्तमान समय में इसके द्वारा विकास को अच्छे ढंग से मापा जाता है। No doubt there are certain problems, and you can say problems are malnutrition, you can say
high mortality of infant, illiteracy, unemployment, income inequality in case of distribution of income. So, here it can be pointed out that social and basic needs should increase in less developed countries. यहाँ पर भी आप देखिए कि अगर सोशल एंड बेसिक नीड्स पर रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि सोशल एंड बेसिक नीड्स बहुत भागों में बटा हुआ है, जिसका इम्पोर्टेंट भाग का चर्चा होगा अभी. देयर आर सम बेसिक नीड्स in their indexes. Number A, health. यहाँ पर जन्म से ही माप करना होगा. So you can say life expectancy at the time of birth. नंबर बी, एजुकेशन. ये सब देखिए कि सोशल बेसिक नीड्स है, हेल्थ है, दूसरा जो पॉइंट पर जा रहे हैं शिक्षा है. यहाँ पर आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एडमिशन इन प्राइमरी स्कूल्स, then literacy rate can be calculated. लिटरेसी रेट को कैलकुलेशन के लिए यह आवश्यक है एडमिशन इन प्राइमरी स्कूल्स. अदरवाइज लिटरेसी रेट को कैलकुलेट करना संभव नहीं है. अलग अलग क्षेत्रों में लिटरेसी रेट अलग अलग है और इस संदर्भ में रिसर्च किया जा सकता है. एंड नाउ नंबर सी, फूड. हियर यू कैन मेंशन सप्लाई ऑफ कैलोरीज टू पर पर्सन. दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. नंबर डी, water supply. Drinking water facility up to percentage of population, and also safe and pure water is required. That is basic need. And now E, क्लीनलीनेस, सफाई की तरफ जाना है. अप टू परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंड स्पेशली फॉर इन्फेक्ट. एंड नेक्स्ट वन इज हाउसिंग फैसिलिटीज अप टू परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन. And next one, G, sanitation. Facilities up to percentage of population. Death of infants due to lack of cleanliness and pure water facilities. Because infants suffer from diseases in their early lives. So,
in the measurement of economic development and growth, there are basic needs which should be fulfilled. Otherwise, there should not be proper measurement of economic development and growth. And now, part 1 is over. Thank you. Stay home. Stay safe.